दोस्तों, राहुल गांधी के एक ऐलान से आज बीजेपी बुरी तरह परेशान हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी को और आरएसएस को यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को साफ साफ बता दिया है कि पूरे देश में कांग्रेस ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। बीजेपी ये मानकर बैठी थी कि अब तीसरी बार सत्ता में मोदी आ गए हैं और हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी जीत गई है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी की सत्ता अब सुरक्षित रहेगी और अब तक उसने जो मनमाना शासन किया है उसे भी आगे वो जारी रखेगी। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बता दिया कि बीजेपी अपने मकसद में इतनी आसानी से कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस उसके सामने देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए ढाल बनकर खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने तो आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि किसी और देश में अगर वो होते तो अब तक उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता, यानी देशद्रोह का मामला चल चुका होता। आपको बता दूं कि कल मोहन भागवत ने कहा कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तभी देश को सच्ची आजादी मिले और उन्होंने यानी मोहन भागवत ने संविधान पर भी सवाल उठाए, जिस पर राहुल गांधी ने आज बड़ा पलटवार किया है। दरअसल आज कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन था और इस मौके पर ही राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं। आइए जरा उसकी एक वानगी सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी और क्यों यहां से बीजेपी आग बबूला है और यहां से परिस्थितियां किस दिशा में जाती हुई दिखाई देती हैं। सुनिए जरा। Of a centralized understanding, Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. तो सुना आपने, यहां साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर किसी और देश में होते तो देशद्रोह का मुकदमा चलता मोहन भागवत के ऊपर। बहुत बड़ी बात, यहां बड़ा हमला करते हुए राहुल गांधी। लेकिन उसके अलावा भी राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा है। आइए उसकी एक वानगी और सुनते हैं, राहुल गांधी ने इसके आगे क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए जरा। The people who are in power today do not salute the tricolor, do not believe in the national flag, do not believe in the constitution, and they have a completely different vision of India than we do. They want India to be run by a shady, hidden, secret society. They want India to be run by one man, and they want to crush the voice of this country. They want to crush the voice of the Dalits. They want to crush the voice of the minorities. They want to crush the voice of the backward castes, of the tribals. This is their agenda. And I would also like to say clearly that there is no other party in this country that can stop them. And you will see, the only party that can stop them is the Congress party. And there is a reason for it. The reason is that we are an ideological party. And our ideology does not emerge yesterday. Our ideology, like the RSS ideology, is thousands of years old, and it has been fighting the RSS ideology for thousands of years. We have our symbols. We have Shiva. We have Buddha. We have Guru Nanak. We have Kabir. We have Mahatma Gandhi. We have our symbols. And these are all the symbols who have shown the correct path to this country. Please name one symbol
of the RSS ideology that is revered in India today? Name one symbol. Was Guru Nanak from the RSS ideology? Was Buddha from the RSS ideology? Was Krishna Bhagwan from the RSS ideology? Not a single one. Because every single one of these people fought for equality, fought for brotherhood, fought for. तो राहुल गांधी यहां सीधा हमला बोलते हुए आरएसएस पर और बताते हुए आइडियोलॉजी ऑफ आरएसएस की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में क्या फर्क है और इस देश में कांग्रेस ने या इस देश ने क्या कुछ दिया है और आरएसएस ने क्या कुछ दिया है, ये सारी बातें रखते हुए यहां राहुल गांधी के अलावा आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोहन भागवत को चेतावनी दे दी है। ये जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। इसी मंच से आज जब यहां एक नए भवन में आज जब कांग्रेस पार्टी का कार्यालय जाता है और नया भवन जो है वो दिल्ली में 9A कोटला मार्ग है और यहां पर जब जाता है तो फिर उसी मंच से पहले राहुल गांधी और उनके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आजादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आजादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आजादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आजादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है 1947 में, और मुझे आजादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आजादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आजादी के लिए मरे हैं, आजादी के लिए ठोकरे खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूं, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। तो यहां आपने सुन लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीधा सीधा हमला बोला है, बिल्कुल राहुल गांधी की तर्ज पर, और सीधा मोहन भागवत ने जो बयान दिया उस बयान का खंडन उधर से तो आया नहीं, लेकिन इधर जो हमला हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो दोस्तों कांग्रेस चाहती तो आज केवल अपने गौरवशाली इतिहास, तमाम प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों, इन सब पर बात करके इस उद्घाटन का उत्सव मना लेती, लेकिन आज जिस तरह कांग्रेस ने अपने मुख्यालय से बीजेपी को चेतावनी देने का काम किया है, उससे जाहिर होता है कि कांग्रेस की अप्रोच अब बदल रही है। उसका मुख्यालय ही नहीं बदला है, बल्कि अब उसके काम करने के तौर तरीके भी बदल रहे हैं, यह साफ दिखाई देता है। इससे पहले बेलगावी में जो सम्मेलन अभी हुआ था, उस सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन मजबूत करने की बात कही थी, और अब राहुल गांधी ने बता दिया है कि केवल कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ने का मादा रखती है, जिसके बाद बीजेपी तिल मिला गई है। जेपी नड्डा ने एक्स पर आज
राहुल गांधी के इस बयान के बाद ट्वीट किया है और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, इंग्लिश में है लेकिन उसका हिंदी तर्जुमा थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूं। और कह रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को उत्साहित करने का रहा है जो कमजोर भारत चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता और लोगों के विश्वास को धोखा देना था, लेकिन भारत के लोग समझदार हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को हमेशा ठुकराएंगे। ये कह रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, माफी चाहूंगा जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयान के बाद साफ साफ यहां पर कि राहुल गांधी की, इसके अलावा जेपी नड्डा लिख रहे हैं कि अब कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है, अब उनके अपने नेता ने ही इसका पर्दाफाश कर दिया है। मैं राहुल गांधी की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वो बात साफ साफ कही जो देश जानता है। यह कोई रहस्य नहीं है कि गांधी और उनके तंत्र का शहरी नक्सलियों के साथ गहरा संबंध है जो भारत को अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा है वो भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने की दिशा में है। ये बात यहां पर कह रहे हैं जेपी नड्डा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेपी नड्डा जो बात यहां पे कह रहे हैं और राहुल गांधी पर सीधे सीधे हमला बोल रहे हैं, नक्सली कह रहे हैं, अर्बन नक्सली कह रहे हैं कि यह कोई रहस्य नहीं है कि गांधी और उनके तंत्र का शहरी नक्सलियों के साथ गहरा संबंध है जो भारत को अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। ये सारी बातें जेपी नड्डा कहकर आखिर क्या यहां पर राहुल गांधी को अपमानित करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं? दरअसल गौर फरमाने वाली बात यह है दोस्तों कि नड्डा के बयान पर जो कुछ यहां पर आया है सामने, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी देश विरोधी हैं। यानी नड्डा राहुल गांधी को देश विरोधी बता रहे हैं। अगर राहुल गांधी का संबंध नक्सलियों से है और यह बात बीजेपी और उसकी सरकार जानती है, तो फिर अब तक राहुल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है बीजेपी, क्यों नहीं की गई? यह बड़ा सवाल है। या सिर्फ यह बयानबाजी है, अपना बचाव है, अपने लिए छतरी, जो अर्बन नक्सली शब्दों का छतरी है, उन छतरी को ओढ़ करके आप तमाशा देखना चाहते हैं? आखिर क्या है ये नड्डा साहब बताएंगे, क्योंकि वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और बीजेपी पर हमला बोला है, आरएसएस पर हमला बोला है राहुल गांधी ने। खैर आगे बढ़ें। और तेजस्वी यादव ने भी आज मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने इसी बयान पर, मोहन भागवत के बयान पर, वो सुन लेते हैं और चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। और पहले तेजस्वी यादव को सुनिए। कहा है देश को सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली थी। मोहन भागवत जी सरासर जो है, जिन्होंने देश के आज़ादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये बाबा कुंवर सिंह का अपमान कर रहे हैं, रानी झांसी बाई का अपमान कर रहे हैं। ये लोग राव तुलार राम जी का जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने शहादत दी, देश के आज़ादी को लेकर के कुर्बानियाँ दी, और उनके साथ हजारों लाखों लोगों ने जेल में बंद रहे हैं, फांसी पे चढ़े, अंग्रेज़ों का जुल्म सहे, ये उनकी जो है अपना अपमान करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। ये लोग तो तिरंगा भी नहीं फहराते थे, बाद में बोला गया तब इन लोगों ने तिरंगा फैलाया। अब बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आज़ादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। अब ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, मतलब ये लोग आरक्षण को खत्म करके फिर बोलेगा कि सही में आज़ादी अब मिली। फिर ये लोग हम मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं, पिछड़ों और दलितों को आज़ादी कब मिलेगी, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये लोग केवल जो मेन एजेंडा है उसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो मेन मुद्दे हैं उसको ये लोग केवल डाइवर्ट करना चाहते हैं। अरे अपने काम बीजेपी ने क्या किया बताएं मोहन भागवत जी कि आज 84 रुपया हो गया है डॉलर का रेट, $1 का रेट 86 हो गया। बताइए 86 हो गया। आज देश गुलामी की ओर जा रहा है, आप क्या बोल रहे हैं?
कौन लेके जा रहा है देश को गुलामी की ओर? इतना महंगा हो रहा, पहले क्या कीमत थी? तभी लोग रोते थे, देश गुलाम हो रहा, देश गुलाम हो रहा। अब इससे ज्यादा 86 रुपए से ज्यादा इनके 86 रुपए तो इनके राज में हुआ। अब कहाँ देश जा रहा है? गुलामी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? मोहन भागवत जी, ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे या जितने हमारे सुभाष चंद्र बोस रहे, इन लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का अपमान देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मोहन भागवत जी को जो है बताना चाहिए कि पिछड़े दलितों को आजादी कब मिलेगी। तो यहां साफ साफ हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव भी और कह रहे हैं कि देश को आखिर बताना चाहिए कि आजादी कब मिलेगी। और ये जिस ढंग से कर रहे हैं मोहन भागवत या बीजेपी का यहां जिक्र करते हुए कि अभी तो राम मंदिर की बात हो रही है, कल को आरक्षण खत्म करने पर भी कहेंगे कि आजादी अब मिली है। तो अंबेडकर, और दूसरी तरफ आप अंबेडकर साहब, आप बाबा साहब अंबेडकर आपको याद होगा, और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान वाले अमित शाह के बयान पर बीजेपी अब तक बचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई है। और अब मोहन भागवत के आजादी वाले बयान का मामला खड़ा हो गया है। क्या इससे बीजेपी अब और घिर जाएगी? इसकी चर्चा हम करेंगे। राहुल गांधी ने आरएसएस और